Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Ashtaprayeshu Bhadreshu. Ashtaprayeshu Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Sloke. Bhagavati Uttama Sloke. Bhaktir Bhavati Naishtuki. Bhaktir Bhavati Naishtuki. Hare Krishna. आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय में से 21वां श्लोक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। परम पत्तकिताचुस्तम अपि उतम मंगलम नमे मुकुंदम सवो करुणा कुरुते सभयाम हरे न सत्कंचन कंकनो। Translation: the upper portion of the body, though crowned with a silk turban, is only a heavy burden if not bowed down before the personality of Godhead, who can avoid mukti. And the hands, though decorated with glistening bangles, are like those of a dead man, if not engaged in the service of the personality of Godhead Hari. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. As stated here before, there are three kinds of devotees of the Lord. The first class devotee does not at all see anyone who is not in the service of the Lord. But the second class devotee makes distinctions between devotees and non-devotees. The second class devotees are therefore meant for preaching work, and as referred to in the above verse, they must loudly preach the glories of the Lord. The second class devotee accepts disciples from the section of the third class devotees or non-devotees. Sometimes the first class devotees also come down to the category of the second class devotee for preaching work. But the common man who is expected to become at least a third class devotee is advised herein to visit the temple of the Lord and bow down before the deity, even though he may be a very rich man or even a king with a silken turban or crown. The Lord is the Lord of everyone, including the great kings and emperors. And men who are rich in the estimation of mundane people must therefore make it a point to visit the temple of the Lord Shri Krishna and regularly bow down before the deity. The Lord in the temple in the worshipable form is never to be considered to be made of stone or wood. For the Lord in His Archa incarnation as a deity in the temple
shows immense favor to the fallen souls by his auspicious presence. By hearing the process, as mentioned herein before, this realization of the presence of the Lord in the temple is made possible. As such, the first process in the routine work of devotional service, hearing is an essential point. Hearing by all classes of devotees from the authentic sources like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam is essential. The common man who is puffed up with his material position and does not bow down before the deity of the Lord in the temple, or who defies temple worship without any knowledge of the science, must know that his so-called turban or crown will only succeed in further drowning him in the water of the ocean of material existence. A drowning man with a heavy weight on his head is sure to go down more swiftly than those who have no heavy weight. A foolish, puffed up man defies the science of God and says that God has no meaning for him. But when he is in the grip of God's law and is caught up by some disease like cerebral thrombosis, the godless man sinks into the ocean of nescience by the weight of his material acquisition. Advancement of material science without God consciousness is a heavy load on the head of a human society. And so one must take heed of this great warning. The common man, if he has no time to worship the Lord, may at least engage his hands for a few seconds in washing or sweeping the Lord's temple. Maharaj Prataprudra, the great powerful king of Orissa, was always very busy with heavy state responsibilities. Yet he made it a point to sweep the temple of Lord Jagannath at Puri once a year during the festival of the Lord. The idea is that however important a man one may be, he must accept the supremacy of the Supreme Lord. This God consciousness will help a man even in his material prosperity. Maharaj Prataputra's subordination before Lord Jagannath made him a powerful king, so much so that even the great Pathan in this time could not enter Orissa on account of the powerful Maharaj Prataputra. And at last Maharaj Prataputra was graced by Lord Sri Chaitanya on the very grounds of his acceptance of subordination to the Lord of the universe. So even though a rich man's wife has glistening bangles made of gold on her hands, she must engage herself in rendering service to the Lord. Om Ajnana-Timirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Vishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayyam Radhi Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta-Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vikantam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parihara Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Radha Sagana He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Bhakta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। One was not listening to the messages about the flowers and the mountains. The upper portion of the body, though crowned with a silk turban, is only a heavy burden. If not bowed down before the personality of Godhead, you can avoid mukti, freedom. And the hands were decorated with glittering bangles, unlike those of a dead man, not engaged in the service of the personality of God. Hare Krishna. तो हम ये जो मंगलवार कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की तरफ से सभी भक्तों को हृदयपूर्वक आमंत्रित करते हैं। और ये जो श्रीमद् भागवतम की जो कथा की श्रवण कीर्तन हम कर रहे हैं, हम सभी श्रोता से प्रार्थना करते कि आपके आशीर्वाद से हम कुछ इस भागवत कथा के बारे में प्रयास करते हैं, क्योंकि भगवान की गुणगान और उनके शब्दों के बारे में कोई सीमा नहीं रहता है। और हम जैसे तुच्छ व्यक्ति जो इसके बारे में बताना, मतलब एक पक्षी जैसे आसमान के ऊपर कितना उड़ना चाहता है, उसका कोई सीमा नहीं रहता है। तो इस संपूर्ण सागर, भगवान की जो दिव्य सागर की कथाओं के बारे में, एक बूंद के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे ये कथा आगे बढ़ते जा रहा था, जैसे हमें अवसर मिला था, सुखदेव गोस्वामी ये दूसरे स्कंद भागवतम से बता रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे भगवान पहले परीक्षित महाराज को प्रोत्साहन देते देते वो बताते हैं कि मेन उद्देश्य क्या रहता है मनुष्य जीवन। मतलब जब ये मनुष्य जीवन लेने के बाद अगर ये इंद्रिय और ये जो शरीर को भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, पर उसमें से एक उदाहरण हमने लिया है यहाँ पे। एक्चुअली सचमुच देखा जाए, ये जो कृष्ण भक्ति है, ये जो आचार्य लोग हैं, इनका मेन उद्देश्य है एक साधक या जो प्रयासी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में प्रोत्साहन देना। जब तक किसी मार्ग में प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता है। अभी कोई बताते कि स्विमिंग या किसी दौड़ में जैसे सभा में बैठे लोग क्यों खड़े रहते हैं, सिर्फ बताते कि चीयर अप, उनको चीयर कर दो, मोटिवेट हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसको प्रोत्साहन नहीं देता है तो बताते कि वो ढीला पड़ने का चांसेस है। अरे कोई अभी मैं अकेले
बताते हैं उतना उसके पास डिटर्मिनेशन रहना चाहिए। पर जब तक कोई आसपास में अगर कोई व्यक्ति, अगर मैदान में कोई व्यक्ति अकेले दौड़ रहा है और उसको कोई पता है तो हौसला टूट जाने का चांसेस है, तो कोई व्यक्ति उसको चीयर अप करते रहते हैं, नहीं हो जाएगा, कम ऑन, यू कैन डू इट। ये अगर कोई व्यक्ति बोलता रहेगा तो उसको हौसला, इतने लोग मुझे प्रोत्साहन करके तो आगे बढ़ने का चांसेस है। उसी तरह ये कृष्णा भक्ति में आपसे पूछ रहा हो, इज इट अ एंजॉयमेंट और इज इट अ स्ट्रगल? कृष्णा भक्ति ये कोई बहुत आनंद से करते हैं या इसको हमें बहुत बता दें कि प्रयास करना, इसका संघर्ष है कि नहीं? कोई बोल सकता है इज इट अ हैप्पी मूवमेंट, मतलब अरे आराम से हम लोग जब उठ के अरे बहुत अच्छा हो गया आप लोग, मुझसे तो एटलीस्ट व्यासासन में बैठ के मैं झूठ बोलना ही गलत है। मेरे जीवन में कृष्ण भक्ति कोई एंजॉयमेंट नहीं है, इट इज अ स्ट्रगल, संघर्ष है, रोज एक दिन का संघर्ष है। रोज उठने के बाद संघर्ष करना ही पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद रोज संघर्ष करना पड़ता है। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं प्रभु मेरा एस्टिमेट क्या रहेगा, अगर मैं बोल दिया तो मैं संघर्ष कर, मैं झूठ बोल रहा हूं आप लोग से। भगवान को केंद्र करके मैं बोलता हूं, मैं झूठ बोलता हूं अगर आई से दैट कृष्णा भक्ति इज एन एंजॉयमेंट, मुझे तो नहीं है। यहाँ पे सचमुच आने के लिए भी मंगलवार कार्यक्रम में आके इस लोकल ट्रेन में करने के लिए भी संघर्ष है। क्यों? बिकॉज आई मुझे आप लोग का जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग भक्त लोग के साथ में रहेगा तो यू कैन डू इट, आप कर पाओगे। आज ये 7:30-8 बजे का जो आप लोग का प्रोत्साहन है, कल के संघर्ष के लिए मुझे हेल्प होगा। इसलिए भक्तों का संग मतलब क्या? भक्तों का संग मतलब एक दूसरे को प्रोत्साहन देना। प्रभु मैं भी प्रयासी हूं, कर सकेंगे, वी कैन डू इट। इसलिए हमेशा बता देना, हम हमारे जैसे बच्चे जो विद्यार्थी हैं उनको बोलते बेटा जब आप पाठशाला या कॉलेज में जाते हो वैसे व्यक्ति के साथ जो संग करो जिसको पढ़ाई लिखाई में जो रुचि रहता है। अगर मैं कॉलेज या किस में भेजता हूं जो व्यक्ति को जरा भी रुचि नहीं है तो समझ लेना तुम्हारा मार्ग किस तरह जाएगा। मेरा कोई इतना विनती नहीं है कि मेरा कोई अपेक्षा नहीं है, माता पिता ये बोलते हैं मेरा ये अपेक्षा नहीं है कि तुम बड़े IIT क्रैक करें, पर इतना प्रयास करना कि गलत संग को छोड़ देना। दैट इज माई ओनली। एक निज सत्य पेरेंट्स वही बोलते हैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ग्रेड, बट क्योंकि ये शुरुआत है। अगर पहले ही बच्चों को बता दिया आई एक्सपेक्टेड टू क्रैक द IIT, बोले भाई माता पिता मैं कोई न्यूटन का बेटा नहीं हूं कि मैं क्रैक करूं, मेरा लिमिटेशन था। तो इसलिए माता पिता में इतना कोई अपेक्षा नहीं करता हूं, यू जस्ट बी अ प्रॉपर पर्सन। तो क्योंकि अगर जो संग रहता है तो तभी आपको प्रोत्साहन होता है भक्ति करने के लिए, आपको इच्छा आता है कैसे चलो लेट मी डू इट। पर अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी ढीला पड़ा है, थोड़ा उसको भौतिक इच्छा है, यार छोड़ दे। अगर सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे क्यों बताते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण देते हैं। परीक्षित महाराज अपने लास्ट मोमेंट में है, डेथ बेड, अंतिम सांस नहीं है। ये पहले दिन होगा, शुरुआत फर्स्ट कैंटो या सेकेंड वर्ड, अभी सिर्फ 7 दिन बाकी है। तो अभी जो व्यक्ति अंतिम डेथ बेड में है तो उसको प्रोत्साहन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो पहले क्या बोलते हैं, परीक्षित मुझे पता है कि आपको ये जो अकाल मृत्यु आया है ये दुर्भाग्यवश है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वेरी यंग बोलते ना, उसका
किसको भी आना नहीं चाहिए, पर अगर आया तो भी इसको कोई रोक नहीं सकते। किसी के हाथ में है, किसी के हाथ में सीमा नहीं है। इट इज ऑल बाय आवर कर्म, ऑल बाय द डेस्टिनी। पर अगर वो व्यक्ति को भी बोले अरे क्या होगा, बहुत बुरा लगे, नो, दैट इज नॉट द वे। इसलिए साधु संग, जैसे लास्ट मंगलम में बताया था, साधु संग मतलब प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना, चलो नहीं हुआ। तो यहां पे वो बताते हैं परीक्षित, डोंट वरी, आप इसमें कोई चिंता मत करो कि आपको इतनी जल्दी आपको मृत्यु आ चुका है। मेन उद्देश्य क्या है कि आपने अपना जीवन को कैसे निभाया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी जब हम जाते हैं किसी मॉल या किसी दुकान में, हम पहला ये देखते हैं कि उसका क्वालिटी क्या है। अगर दुकानदार के ऊपर बड़ा होलसेल 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 10 रुपए में चावल मिल जाएगा, लोग भागेंगे। तो पीछे से ही विचार आता है, दे रहा है उसमें कुछ मिलावट तो रहेगा ना, नहीं तो इसको क्यों इतना है। सभी जगह पे हम लोग क्वालिटी काउंट करते हैं। वो क्वालिटी क्या है, चावल का क्वालिटी क्या है। अगर हापुस के समय में कोई बोला 10 रुपए में 1 डजन हापुस, कोई बोलेगा ये हाइब्रिड ऐसा कोई 10 रुपए में कोई देता। आजकल कोई, मैं सोचा, मैं पूछ रहा था, कोई बात लोग बोल रहे थे डी मार्ट में 1 for 1 फ्री। अगर एक 200 रुपए का लेगा तो दूसरा 200 रुपए। लोग बोलते कुछ ना कुछ काला में, दाल में कुछ काला नजर आएगा, ऐसा कोई थोड़ी रहता है। यू डाउट किसके ऊपर हो जाता है, क्वालिटी में डाउट होता है। तो सभी जगह पे हम क्वालिटी चेक करते हैं कि क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसका क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी क्या है। अगर 10 किलो चावल आप घर पे रख दे, बकवास रहेगा तो आप एक ही दिन में फेंक देंगे, क्वालिटी खाने की लायक नहीं है। उसी तरह आप कितने वर्ष आयु रहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है कि आपका सांस इतना कंट्रोल में रखो ताकि 100 वर्ष जिए। 100 वर्ष जीने के बाद आपने कैसे जिया, हाउ डिड यू लीड योर लाइफ। सिर्फ नाम के वास्ते जिया है, उससे अच्छा बेटर 2 मिनट जीवन जियो, पर ऐसा जियो कि लोग आपका उदाहरण पालन करते रहे। दैट इज लाइफ। आप अपने खुद की उदाहरण में ऐसा प्रे करो, सिर्फ जीने के लिए बोलते बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, आप 1 साल आपको बने 10 साल, रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पे परीक्षित सुखदेव गोस्वामी बताते क्या इन वृक्ष लोग के पास सांस नहीं है, वो भी जीव है, पर आप ऐसा जीव जीना चाहते हैं। देखिए आपके सामने कितनी कोई वृक्ष हजारों 100 200 2000 वर्ष जिए, बट डज इट मेक एनी मीनिंगफुल, उसका कोई मतलब है। अगर कोई आपको ऑप्शन देगा 200 साल जीता है, चाहिए आपको जीवन, नहीं मैं ऐसा जीना पड़ेगा, नो, इट्स नॉट वर्थ इट। व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट, व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट। एक छोटा जीवन भी जिया, बट लेट मी हैव क्वालिटी लाइफ। ये क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन आई लीड अ क्वालिटी, यहाँ पे इसलिए बताते हैं, यहाँ पे व्हाट इज अ यूज। एक मकसद हो के भी क्या फायदा, जो मकसद भगवान के चरणों में झुकता नहीं है, वैसा मकसद का क्या फायदा। उसका मतलब क्या है, मकसद मतलब having understanding, I am this, मैं और PhD हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, वैसा व्यक्ति भगवान के भक्तों के सामने या भगवान के सामने आता झुकता नहीं है, नम्रता नहीं आता है, फॉल्स ईगो रहता है। व्हाट इज द यूज। ये इतना सारा मिथ्या अहंकार को लेके आप जा रहे हो, जब तक जो व्यक्ति के पास वो मिथ्या अहंकार रख के भगवान के भक्तों के सामने नम्रता से झुकता नहीं है, वैसा शरीर किसके लिए। What is the use of that शरीर। महाराज परीक्षित, आप वैसे व्यक्ति हो जो आज आपको तुरंत एक सूचना मिल गई, आप तुरंत त्याग दिए। ये एक जीवन है, आपके उदाहरण से जीना, एक उदाहरण सेट कर दो। इसलिए बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे हम इस मंदिर में आते हैं, ये एक बताते कि एक भक्ति तीर्थ महाराज एक उदाहरण देते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सीख है। कोई भी सिर्फ मंदिर नहीं, मंदिरों मस्जिदों और किसी भगवान की प्रार्थना की जगह पे जब जाते हैं तो लोग पहले उनके चप्पल को उतारते हैं, चप्पल को निकाल लेते, हाथ पाँव को धो लेते हैं। हाथ पाँव क्यों चप्पल को निकालते हैं? कि वो धूल मिट्टी है, इट इज डर्टी प्लेस, उसको वो बताते कि सूची नहीं है, अशुचि है। इसलिए भगवान की स्वच्छता की जगह में अशुचि जाना दो, बाजू में हटा दो, एंड वो नंगे पांव से जाना पड़ता है। व्हाट इज द फर्स्ट इंडिकेशन? कुछ भी हो, भगवान आपके दावे ये सब हटा दो, मेरा रॉयल शूज ये सब हटा दो, आई एम कमिंग, नंगे पांव में जाना पड़ता है। इससे वो एक अच्छा उदाहरण देते हैं। अगर हम ये चप्पल को बाहर निकालते हैं तो उसी तरह जब हम भगवान के सामने आते हैं, हमारे हृदय की जो चप्पल है, जो मिथ्या अहंकार है, उसको बाजू में रखना पड़ता है। When you are coming in front of God, you are nothing but insignificant living entity. अगर वो होते ना, बताते ना, जो आइडेंटिटी रहता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमः तद्विधि प्रणिपात सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधि, ये सब हमारी जो उपाधि है ये चप्पल के समान है। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, मैं एक ये पर्टिकुलर गुण जिसमें परिवार से आ रहा हूँ, मैं एक बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं एक सब बड़ा ज्ञान व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सौंदर्य औरत हूँ, ये सब चप्पल है। इससे जब भगवान चाहते हैं, अगर मेरे पास आते हैं तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये उपाधि को हटा दो। ये जब उपाधि निकल जाता है तो तभी ये जो सिर है वो झुकता है। अगर उपाधि के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सर झुकता नहीं है, क्योंकि हम वो डेजिग्नेशन के साथ आते हैं कि हम बहुत जानते हैं, आई नो वेरी मच, मैं सब कुछ जानता हूं। इसलिए आपका जो भक्तों का शब्द है वो हमारे कानों में गिरता नहीं है। इसलिए जब वो उपाधि को जब हम बाजू में हटाते हैं तो तभी हम नम्र पूर्वक भगवान के सामने और भक्तों के सामने बैठ के सुनते हैं। आज ही मैं सुबह एक सोच रहा था, एक बता रहे कि एक ये जो मिथ्या अहंकार, एक साधु से कोई पूछ रहे थे, स्वामी जी आप बताते हैं कि ये जो मिथ्या अहंकार ये कैसे निकालना चाहिए, हाउ शुड वन रिमूव दिस फॉल्स ईगो, एक फॉल्स ईगो को कैसे हटाना चाहिए। कभी कभी हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो हमें को नीचे लेके आना चाहते हैं और हम उनके सामने झुकना नहीं चाहते, हम उनको माफ नहीं करना चाहते और उनको कभी उनके साथ संग भी नहीं करते। ठीक है, बराबर है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके ये मिथ्या अहंकार को हमेशा आपके साथ लेके जाए, दैट इज रॉन्ग। जब तक ये जो अहंकार है, मैं बोल के जो अहंकार है, वो जब तक नहीं आता, सबको पता है, तो हम नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो तभी वो स्वामी जी बता रहे थे, अगर वो हमारे पास क्षमता नहीं है सबके सामने जुड़ने के लिए, पर एटलीस्ट वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ किसके सामने तो झुकना चाहिए। अगर हमारे दुश्मन के सामने नहीं झुक सकते, पर एटलीस्ट हमारे दोस्तों के सामने तो झुको। वन इज अ बेनिफिशियल रिलेटेड, बिकॉज जब तक वो विनम्रता नहीं रहता है तब तक ये जो ज्ञान है हम आस्वादन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आके जैसे मैंने बताया साधु सेवा मतलब उनकी सेवा करना है। यू कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने बैठ के उनके दो शब्दों को सुनना। आप बताइए प्रभु जी, आप बताइए, क्योंकि आप जो बताते हैं मुझे अपने जीवन में डालना, यही विनम्रता है। आपके मिथ्या अहंकार को हम बाजू में रखते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसका क्वालिफिकेशन है। जैसे यू आर स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, लेट मी हियर। वो जब भगवान देखते हैं तो भी भगवान को प्रसन्नता होता है। ही इज ट्राइंग टू बी हम्बल, ये चाहता है अपने जीवन में भक्ति प्रगति करना। एक प्रोत्साहन है, ओके, ही इज ट्राइंग।
इधर इतना प्रयास करके आके कैसे भी बैठ के श्रवण कीर्तन करना और दो शब्दों को सीरियसली लेना, दैट मीन्स योर फर्स्ट पोजीशन इज टू नित्य अहंकार को बाजू में रखकर बैठना। ये फर्स्ट पोजीशन है। वो तभी जब वो व्यक्ति को उसको वैल्यू रहेगा, जब वो नहीं तो वो अहंकार लेके जब आगे बढ़ता है तो ये भक्ति में ज्यादा रुचि नहीं आता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं अगर हम सिर्फ जाप करते, जैसे हम बोलते हैं कि हम लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, इसी का स्ट्रगल है। रोज हमें प्रयास करना पड़ता है, रोज करना ही पड़ता है, एक एंजॉयमेंट नहीं है। पर जो व्यक्ति के साथ संग में है तभी वो हम प्रगति कर सकते हैं, नहीं हो जाएगा। उसी तरह जब हमें वो विश्वास रहता है और विनम्रता से, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते त्रिणामति सुनिचेना तरोरपि सहिष्णु अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा। ये कृष्ण भक्ति नम्रता से करना चाहिए, नहीं तो हम कितने साल से हम ओके हमें करना चाहिए। डोंट डू इट एज अ फॉर्मेलिटी, डोंट डू इट एज अ फॉर्मेलिटी। हमें करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो फर्स्ट है। अतः ब्रह्म जिज्ञासा, क्यों करना चाहिए, ये जब तक हमें नहीं है तो तभी हम उसको उतना सीरियसली, अभी फॉर्मेलिटी के लिए आप ज्यादा करते हैं, करना चाहिए वो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। जब आपको पता है क्यों करना चाहिए तभी आप वो ध्यान पूर्वक करेंगे। अगर हम बोलेंगे पढ़ना चाहिए आपको पढ़ेंगे, क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाट इज द रिजल्ट व्हाट यू आर गेटिंग एंड व्हाट इज द पर्पस, देन एक पर्पस जब पता चलेगा तभी हम उसको करते हैं। अगर मैकेनिकली करेंगे तो इट बिकम्स अ बर्डन, वो एक बोझ बन जाता है। किसको पुश करना पड़ता है, उठ के सुनो तो करो, तो देयर यू डेवलप हेट्रेड उसके। अरे यार रोज तुम अभी माता पिता के रोज बच्चे लोगों को बोलते अरे उठो चलो ये करो, तो कभी कभी घृणा आ जाता है बच्चे लोग, क्या रोज आप मेरे को सब। पर खुद के वो जब संकल्प करता है, खुद सोचता है, जब कुछ विचार डालता है खुद के जीवन में, भक्ति क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, इज इट अ रिचुअल, और क्या प्रशंसा के लिए कर रहा हूं ताकि मुझे अभ्यासासन में बैठ के लोग मुझे हार पहने, इज इट फॉर दैट पर्पस, मैं क्यों ये श्रवण के लिए। जब तक वो विचार नहीं आता है तो ये भक्ति ज्यादा समय हम खींच नहीं सकते हैं। जब हमें पता चलता है उसका उद्देश्य क्या है, इससे मुझे क्या प्राप्त होता है, मेरे शुद्धिकरण का इंपॉर्टेंस क्या है और इसका महत्व क्या है और इसकी दुर्लभता कितना है, बहुत कम है, तभी हम इसको सीरियसली लेंगे। इसलिए ये शास्त्र में सभी आचार्य, सभी सुखदेव गोस्वामी इसका महत्व समझाते हैं। ये प्रवचन मतलब क्या है, रोज हमें यही दोहराना पड़ता है, क्योंकि मन कॉन्स्टेंटली यही विचार में था, ओके समथिंग न्यू। इसलिए हमें वापस वही दोहराना पड़ता है कि हरे नाम एव केवलम कलम नस्ति गतिरन्यथा। क्योंकि ये कंडीशन हो चुका है। एक्चुअली ये स्ट्रगल क्यों है मालूम है, मैं आपको बता दूं, ये संघर्ष क्यों है। इतने लोग को हमने बोलता हूँ ये मेरे संघर्ष, क्योंकि ना मेजॉरिटी बोलते ना हम जिस जगह पे है वो जगह भक्ति का जगह नहीं है। असत्य कोई मान, यहाँ पे इंटायर मटेरियल वर्ल्ड में कांस्टेंट बम्बार्डमेंट हो रहा है। यू आर दिस बॉडी, आप शरीर हो, आप भोगता हो, यू आर द एंजॉयर। और यहाँ पे हम जो 100 लोग जो खड़े हैं, हम लोग बोल रहे हैं नो यू आर नॉट द एंजॉयर, यू आर नॉट द बॉडी। अभी 1000 लोग के सामने आप 10 खड़े हैं, आप जीत देंगे? इम्पॉसिबल। ये संघर्ष है। नहीं, प्रॉपर क्लियरली बताते हैं, कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियस मीन्स यू आर डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट माया। दुर्गा देवी के घर पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि आज से मैं आपका नहीं सुनने वाला हूं। वो छोड़ेंगी, वो त्रिशूल लेके खड़े रहेंगे, नहीं सुनेगा, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, बस हो गया मन और मंदिर इंद्र को सैटिस्फाइड। अच्छा नहीं सुनेगा, ये ले और टेम्पटेशन। तो उस टाइम ऑब्वियसली अरे यार, फिर भी वो व्यक्ति है जो 10 बार गिरने के बाद उठता है, नहीं सुनूंगा। भगवान देखते इसको इतना प्रयास करे, दैट इज व्हाट इज अ टेस्ट। प्रॉपर बोलते डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट माया।
जैसे ये समुद्र आप देखे होंगे, समुद्र की लहरें एकदम लहरें हैं। इट इज लाइक रफ। अगर आप अरेबियन सी में गए हो या जूहू बीच में गए हो, चौपाटी, जब लहरें के सामने अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको लात मार के भगा देंगे। पर जो व्यक्ति एकदम सीरियस है समुद्र के अंदर घुसने के लिए, 10 बार लात मार खाएगा, फिर भी ट्राई करेगा, 10 बार वापस, पर बीच में एक बार अंदर चले जाता है, then that is very serene, एकदम शांत रहता है उसका एकदम। जैसे एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज जब ये उनकी खुद की जीवन को उदाहरण दे रहे थे, एक बार वो एक जगह के बैठे रहे थे और वहां पे उन्होंने देखा बहुत सारे जो फिशरमैन, आपने देखा होगा, मछली जो पकड़ते, कभी कभी समुद्र में हाई टाइड रहता है, बड़ा हाई टाइड, उस समय एकदम, उस समय उनको बोलते नहीं जाने के लिए, फिर भी समुद्र को तो समुद्र, उसके सामने कोई, तो वो देख रहे थे बहुत सारे जो मछली पकड़ने वाले, उसको क्या बोलते हैं, मछलियां जो आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड, मछुआरे लोग, उन लोग देख रहे थे बहुत सारे, दो तीन इतने बड़े बड़े वेव्स आ रहे थे, उनको उठा के फेंक रहा था, गिर रहे थे, फिर भी वापस चल रहे थे, वापस ट्राई करे, ऐसे 10-15 बार करने के बाद मिल गया, कैसे भी अंदर गए। अंदर जाने के बाद उनका बोट एकदम स्मूथली सेल हो गया। प्रॉब्लम यही है हमारा जीवन में, हम अब तक भी किनारे के पास नहीं है। वी आर ट्राइंग टू एंटर इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस, लात मार के बाद, अरे बोले चैंट हरे कृष्ण भी हैप्पी, या तो हैप्पी नहीं है तो लात ही मिल रहा है मुझे, नहीं फिर भी बोलते हैं, प्रभुपाद बोल रहे, कुछ ना कुछ तो चांस रहेगा, चलो ट्राई करते, वापस ट्राई करते, हाँ वापस। उसमें क्या होता है, कोई बोलते हैं यार छोड़ दे यार, ये क्या है, मूर्ख हो गया, समुद्र के सामने थोड़ी कोई फाइट करता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, डोंट बी सरप्राइज्ड वन हू गिव्स अप कृष्ण कॉन्शियस एंड गोस, बी सरप्राइज्ड विद दोस वन स्टिकिंग ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। आश्चर्य उन व्यक्ति का है जो आज भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, आश्चर्य उनकी नहीं है जो कृष्ण भक्ति को छोड़ के चले जाते हैं। प्रॉपर फर्स्ट कैंटो भागवत में बोलते हैं, बिग स्टॉलवर्ड्स हैव टेकन अ रिट्रीट ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन सर्विस। यूटर्न मार डाल देते, यूटर्न, अरे पता नहीं, चलो घुमा लो, बहुत ही नहीं अच्छा है, ये पता नहीं है कौन कृष्ण है, कौन सा गोलोक है, सिर्फ काल्पनिक लोग है, कोई देखा है क्या उनको, ये सब विचार आता है। पर जिसको अदौ श्रद्धा करेंगे, ये किसके साथ आता है, जो इन जैसे आचार्य गए, नो यू कैन डू इट, करो, आई एम देयर, मैं देखा हूं, आ जाओ, वहां पे उन लोग उस तरफ खड़े, उन लोग प्रोसेस, यू कैन डू इट, उनको देखना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है, हम उनको देखते नहीं, हम बोलते मैं ही को, उन लोग बोले यू कैन डू इट, हम आए तो आप भी आप आएंगे, डू इट। तो शुरुआत में तकलीफ रहता है, पर जो व्यक्ति once he is entered deep into Krishna consciousness, then it is a smooth sail। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, रागानुग भक्ति के लिए साधक, अभी हम साधक है, इसलिए रोज स्ट्रगल करना इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। मंजिल पता थी कि दिल्ली दूर नहीं है, मंजिल बहुत नजदीक है, वो जब आता है तो देन यू कैन डू इट। प्रोत्साहन देने के लिए एक जैसे और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, एक बहुत सारे अच्छे भक्त दे देते हैं, आपने कभी देखा होगा, कभी आजकल का ट्रेंड है फिशिंग करना, फिशिंग। अभी जो मछुआरा या जो भी है, मछुआरा जो समझो, जो उन लोग कभी कभी नेट फेंकते हैं। अभी समुद्र की गहराई को कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। समुद्र की गहराई मतलब वेरी डीप, जो सी बैठे हैं बहुत मुश्किल है। अगर ऐसे बहुत सारे सी बैठे जो कोई बताते ना, जो मोती ढूंढने के लिए उनको भी नहीं मिलता है, उसका डेप्थ उतना डीप है। पर बताते कि इतने 84 लाख युवनी में ज्यादा से ज्यादा युवनी समुद्र के अंदर है, एक्वाटिक्स, लॉट ऑफ एक्वाटिक्स, जिसका ज्यादा से ज्यादा हमें ज्ञान भी नहीं है। अभी जो मछुआरे लोग ये फेंकते हैं, जो जाल फेंकते हैं, कौन से मछली आता है? सचमुच देखा जाए तो जो डीप है, समुद्र के अंदर है, उन लोग नहीं आते। लोग एकदम डीप, उनको पता है आराम से समुद्र के सौंदर्य को ले रहे हैं, उनको ऊपर से कुछ लेन देन नहीं है।
पर प्रॉब्लम कौन है? जो ऊपर की मछलियां है ना, मैं इधर का घर का ना घाट का उन लोग पकड़ा जाता है। इधर कृष्ण भक्ति में सीरियस नहीं है, इधर भौतिक में, ना घर का ना घाट का। इसलिए वो मछुआरे जो इसलिए बताती कि हमें पर्पस क्या है, यू हैव टू गो डीप इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब आप डीप हो कृष्ण कॉन्शियस में, तो माया में श्रृंखला है, उसमें नहीं आ पाओगे। दिस इज द सीक्रेट। अभी आप बोलते प्रभु जी व्हाट इज द सीक्रेट? माया से बचने का सीक्रेट क्या है? आई एम डीप इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। अभी डेप्थ की, हाउ टू बी डीप, कैसे डीप होना चाहिए, कैसे गहराई में जाना चाहिए, जो करते हो आई एम सीरियस अबाउट इट। सिर्फ करने के लिए करना चाहिए। किस होता मैंने गुरु से अभी दीक्षा तो लिया है ना, दीक्षा तो लिया है, एक हो गया ना, चलो करना तो चाहिए, 16 माह तो होना ही चाहिए। कैसे? टाइम तो नहीं है। इट इज बेटर देन नथिंग, बराबर है, इट इज बेटर, एटलीस्ट कुछ ना नहीं, जाप नहीं करने से जाप करना चाहिए। बट वी वांट फर्स्ट क्लास डिवोटीज, बोलते हैं वी वांट द प्योरेस्ट घी। यहाँ पे दिस मोमेंट प्रॉपर होते हैं, आई क्रिएटेड अ मोमेंट टू क्रिएट प्योर डिवोटीज, नॉट हैंकी पैंकी डिवोटीज। ओके ये भी करो, वो भी करो, थोड़ा कृष्ण कॉन्शियस लेगा, स्पाइसेस ऑन योर लाइफ, नो नॉट दैट। मेरे कृष्ण भक्ति शुरुआत इसके है, इफ यू वांट टू बिकम अ डिवोटी, बिकम अ प्योर डिवोटी। एक शुद्ध भक्त करने के लिए, मैं ये मोमेंट फीडिंग मोमेंट के लिए नहीं है, ओ बाहर वाले को खाने के लिए नहीं है, क्रिएट अ प्रसाद, दैट इज नॉट माय पर्पस। फीडिंग द बेली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं ISKCON को चालू नहीं किया, दैट इज नॉट माय पर्पस। ओ कुछ अन्नदान नहीं, दैट my whole purpose of Krishna consciousness is to create first class devotees। प्रॉपर का सिद्धांत ही क्लियर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको उधर नहीं भेजा कि बेली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, preach this message of Chaitanya। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन नहीं है, you have to become the first class devotees, pure devotees। उसी तरह इसलिए whole purpose कैसे भी है कि भी आपको ये प्रयास, how to be serious। सीरियस जो हम करते हैं, जाप करते हैं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं कैसे भी इसको भगवान के अटेंशन को ड्रॉ कर रहा हूं, एम आई ड्रॉइंग द अटेंशन को, मैं जो जाप कर रहा हूं भगवान का नाम है, लेट मी गो सीरियस डीप इनटू इट। एक नाम भी जाप करता हूं, ये मेरा लास्ट राउंड है। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात सुन रहे, वो हर शब्द को उतना सीरियसली ले रहे। प्रॉब्लम क्या है, माया क्यों झपटते, माया क्यों झपट जा रही, क्यों आ रहे, क्योंकि वी आर नॉट सीरियस अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब सोचते कि कल मिलेगा ना, कल और एक दिन मिलेगा ना, कल भागवतम मिलेगा ना, कल तो भक्त मिले, कल दामोदर सकम मिलेंगे ना, कल प्रभु जी मिलेंगे ना, मदन मिलेंगे ना, कल सुरवार मिले, वी टेक इट सो लाइटली। इसलिए उधर खड़ी है वहां पे, अच्छा तुम मिलेगा ना, तुम मेरे को मिल जा। बट मनुष्य नो, दिस इज माय लास्ट मोमेंट, मुझे कोई एश्योरेंस नहीं है, मैं आज भक्तों के साथ संग किया हूं, ये मेरा लास्ट है, अगले जन्म में मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब रहेगा तो हर कार्य, कृष्ण भक्ति के हर कार्य को हम सीरियसली लेंगे। जब भगवान के सामने जब हम आते हैं, ये भगवान के जो हाथ चलाते, ये अवसर मुझे कोटि कोटि जन्म के बाद मिला है। भगवान के सामने एक सर झुकने का मुझे अवसर मिला है, ये कोटि कोटि जन्म के बाद मिला है। अभी मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। भगवान का एक नाम मुझे, मैं जाप कर रहा हूं, आज मुझे मिला है, कल मुझे कुछ मेरे शरीर में अंधयान हो गया तो मैं भगवान का नाम ही नहीं लू पाऊंगा। इट इज वेरी रेयर, ये फैक्ट है। पर माया का नेचर क्या है, वो बुलाने के लिए नहीं। कौन बोला ऐसा? आज भी जाप कर ले, कौन बोला? ये सब काल्पनिक जो, डोंट बी सो पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहो यार, पॉजिटिव रहो। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रियलिस्टिक। रियलिटी क्या है? रियलिटी इज दैट वी आर प्लेस्ड इन अ मोस्ट एबॉमिनेबल कंडीशन। सब सुनते हैं और पता नहीं यार कल का दिन, बट वी आर नॉट पुटिंग प्रैक्टिकल नहीं डालते। वो कृष्ण कॉन्शियस हम बताते कि इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, कल का पता नहीं है, बट आर वी सीरियस अबाउट इट? हर सांस को लेते हो, डू यू थिंक ये मेरा लास्ट सांस है? हर शब्द को सुनते हो अगर उतना सीरियस, then there will not be a taken। इसलिए प्रभुपाद बताते, one name of Krishna can remove the millions of amount of sins। पर्वताकार जितना पाप हमारे
द्वार है, एक नाम से पता निकल सकता है, एक कृष्ण नाम से निकल सकता है। रूप गोस्वामी बताते कि तुंडी तांडव तुंडे तुंडा ही लब्धे करुण क्रोध कालम भी नहीं है। बोले एक कृष्ण नाम, मुझे एक नाम, एक जबान क्यों दिए हो भगवान, मुझे दो कान क्यों, मुझे हजारों कान दो, क्योंकि उनको पता चला है कि उसका वैल्यू क्या है। एक कृष्ण नाम का वैल्यू क्या है, एक भगवान का शब्द का वैल्यू क्या है। हम यहाँ पे क्यों बताते हैं, वी आर कमिंग टू प्रोपेगेट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कृष्णा, क्योंकि मन को पता नहीं है। मन ये होता है अरे कृष्णा वो तो इधर, यू डू नॉट नो हु इज कृष्णा, वी डू नॉट नो हु इज कृष्णा। ये कॉन्स्टेंट हमको याद करना पड़ता है, हमारा ये जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते परीक्षित डू नॉट वरी, आप इसके बाद में सब छोड़ दो, डोंट बी नेगेटिव, यू गॉट अ लाइफ ऑफ क्वालिटी। महाराज कटवान का उदाहरण देते हैं कि आपको पता चलना चाहिए कि क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, मनुष्य का क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट है। यही कारों को अगर हमने यूज नहीं किया, अगर फिल्म सॉन्ग को यूज करके हम 100 साल भी जिए तो व्हाट इज द यूज। किशोर कुमार की जो सॉन्ग्स या मोहम्मद रफी की सॉन्ग्स या लता मंगेशकर से सॉन्ग सुन के व्हाट इज द यूज। जब तक तुकाराम महाराज की अभंगों के कान नहीं दिया है या पुरंदरदास के शब्दों को कान दे, क्या फायदा आप किशोर कुमार का सॉन्ग सुन के। कल क्या वो सॉन्ग या गीत आपको बचाने वाला है, या किशोर कुमार आपके सामने खड़ा रहेगा। दिस इज व्हाट इज सेइंग, ये फैक्ट है, ये फैक्ट। भौतिक चीज के प्रति आकर्षित रख के कुछ फायदा नहीं है। अगर जब तक वो शरीर होके भी, वो जितना बड़ा मुंडी रह के भी, अगर जब तक वो शरीर भगवान के भक्तों के सामने नहीं झुकता है, उनके दो शब्दों को नहीं सुनता, क्या फायदा, व्हाट इज द यूज। ये कभी पता चलता है द मोमेंट ऑफ डेथ। एक बार कोई व्यक्ति ने पूछा, ये उदाहरण आपने सुना होगा, अरे आप लोग ऐसा बात कर रहे हो जैसे कृष्ण भक्ति में आप लोग आने के बाद कुछ मरने वाले ही नहीं हो, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। हम लोग भी तो मर रहे हैं, आप भी मर रहे हैं, हाँ भक्ति करके क्या फायदा। हम लोग सोचे भक्ति में आने के बाद अमृत, मतलब ये आप लोग मृत्यु नहीं आता है, वो क्या बोलते हैं इमॉर्टल, अमर अमर, आप लोग अमर बन जाते हो, पर आप लोग भी तो मरने वाले हो, तो क्या फायदा। उससे अच्छा रहो आराम से, जियो आराम से, लिव किंग साइज, खाओ अच्छे से, मौज है। क्या तुम लोग भजन करते करते, अरे पार्टी में डांस करो, मौज मस्ती करो यार, बहुत अच्छा। हम लोग ने ना नहीं बोला है, हम लोग ये नहीं बोला कि हम लोग यहाँ कृष्ण भक्ति में इसलिए नहीं आए कि आज अमर होने के लिए, हम आज से ये शरीर हम लोग 100 साल जीते जाएंगे, नॉट वी नो दैट डेथ इज गोइंग टू कम। उसका उदाहरण बहुत सरल बोलते हैं, आपने ये देखा होगा बिल्ली, बिल्ली ये उदाहरण हमने बहुत टाइम सुना, बट सी टेक इट वेरी सीरियसली। बिल्ली वही मुंह में चूहे को भी पकड़ता है और अपने बच्चे को भी पकड़ता है, पर जो मुंह के अंदर है वो दोनों से पूछे उसका प्रज्ञा क्या है। चूहे से पूछता है, अगर आप कोई इंटरव्यू लेंगे, चूहा कैसा लगता है आपको, बोले भाई मुझको निकाल दे भाई, कोई चांस है क्या। पर अगर आप बिल्ली के बच्चे, आपका क्या, आपका इंटरव्यू से आप पूछेंगे आपको कैसा लगता है, बोले मोस्ट सिक्योर्ड, आई एम मोस्ट हैप्पी, मां के जवान में हूं। उसी तरह उदाहरण है, बाहर वाले जो डरते हैं तो दे नो दैट गॉड नोस मेरा क्या, मृत्यु के बाद मृत्यु सर्व हरचम, सब कुछ क्या, एवरीथिंग गॉन, एवरीथिंग गॉन। परसों आने में एक व्यक्ति वेरी बिग बिलियनर साइरस मिस्त्री, वन मोमेंट डैश्ड, एवरीथिंग गॉन। और धरती को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, everything becomes zero, 1 minute। वही चूहे को एकदम पता नहीं ये भौतिक व्याधि का मृत्यु है, और जब भक्त का मृत्यु होता है he knows नेहापिकमना सोस्ति प्रत्यव्यायन विद्यति स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयम्। चलेगा भगवान, I know my destination। यहाँ पे भक्ति थोड़ा भी किया, इतने करने में मुझे आप इतना दे रहे हो तो मैं
सीरियसली लिया तो क्या नहीं मिलेगा। देयर इज नो लॉस। या भक्ति में कोई लॉस नहीं है, ये संकल्प होना चाहिए। देयर इज नो लॉस। ये ऐसा बैंक है जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो जो व्यक्ति ज्यादा इन्वेस्ट करता है उतना ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। अभी हमारे ऊपर है कि हम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारा पूरा जीवन इन्वेस्ट करना चाहते हैं या थोड़ा लाइफ इन्वेस्ट करना, बस इतना बस हो गया, देन यू कैन दैट मच रिटर्न्स मिलेगा। बट श्योर एटलीस्ट भौतिक व्याधि व्यक्ति से तो बेटर है। नहीं, यहाँ पे रिटर्न्स अच्छा है। जब हम पैसा डालते पहले पूछे रिटर्न्स कितना है, रिटर्न्स कितना है, रिटर्न्स अच्छा, दिस इज द बेस्ट रिटर्न्स। तो क्यों हम डरते हैं मृत्यु से? आई नो आज शरीर गया तो भी चलेगा। भगवान में नमे भक्त प्रणश्यति, आई गारंटी यू अर्जुना देयर विल बी नो लॉस। शरीर तो छोड़ना ही है, छोड़ना है उसको, आज नहीं तो कल तो छोड़ना है, बट देयर इज नो लॉस। उतना गारंटी से बोल सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट जल्दी एक भक्त का घर पे होने वाला है। अगर नहीं हो तो भगवान के नाम में आएगा, उतना गारंटीड है। ये शास्त्र है। प्रमाण क्या है? प्रमाण इस शास्त्र। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोलते, माय डियर परीक्षित, डोंट वरी, डोंट वरी, आपने जो क्वालिटी लाइफ लिया है, यू आर गारंटी टू गो बैक टू गॉड, गारंटी। इसलिए हमें वो इंपॉर्टेंट है। ये उदाहरण बहुत सिंपल है, बट इसके डर जैसे जो व्यक्ति जो डिवोटी मनस टेकन कंप्लीट शेल्टर ऑफ कृष्णा, वो व्यक्ति को कोई डर नहीं रहता है, उसको कंप्लीट पता है दिस इज ब्लिसफुल, दिस इज ब्लिसफुल। इसलिए भगवान यही चाहते कि आपका प्रयास कितना है, आपका संघर्ष कितना है। द मोर संघर्ष हम करते हैं भक्ति में, उतना हमारा प्रगति होते रहेगा। तो इसलिए लास्ट में मैं कंक्लूजन करता हूँ। इसका उद्देश्य यही है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक उद्देश्य में बताते हैं। ये सब डिस्टर्बेंस रहता है। माया देवी बोलते हैं बहुत बात करके बस हो गया, बस चलो कहो। पर जब तक हनुमान जी के शरण में है, देयर इज नो लॉस। जैसे श्रीनिवास आचार्य प्रभु हमेशा शुरुआत में वो वर्ष यत्र यत्र योग यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तत्र जहाँ भगवान के भक्त और भगवान के शरण में, देयर इज नो, यू आर कंप्लीटली शेल्टर्ड। दिस डिस्टर्बेंस विल रिमेन फॉर सम टाइम, नॉट डिस्टर्ब। कथा को ज्यादा नहीं रहता है ये डिस्टर्ब, बट यू आर शेल्टर्ड। वो शब्द भी मिल गया, दैट्स माय लाइफ इज परफेक्ट। बस वो दो शब्द भी बस हो गया, माय लाइफ, मेरा जीवन सार्थक है। और इसलिए क्योंकि दो शब्द भी बस हो गया ना, कौन सा पॉइंट किसको हिट होएगा? His life is changed, life is changed। ये हम चाहते हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज ऐसे साधु का संग में रहना चाहिए जो बोलता है नहीं, come on, you can do it। तभी संघर्ष करने में मजा है, रुचि आता है। Then there's worth of doing, yes, let us do it। इतने सारे बात कर रहे हैं, surely जो गोस्वामी इनको कोई मूर्ख समझती नहीं है, उनको तो देख, इसलिए हम कभी भी ऑल्टर में इनको सब रखना पड़ता है ताकि इनको देख के भरोसा, अरे ये तो मूर्ख व्यक्ति तो नहीं है। भक्ति सिद्धांत साइड तो कोई मूर्ख व्यक्ति तो नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जो इतने बड़े मैजिस्ट्रेट तो मूर्ख व्यक्ति तो नहीं है भक्ति करके। इनका जब हम शरणागति और उनके आशीर्वाद, then you can do it, yes, we can do it। वो हमेशा बोलते हैं शॉर्ट है, you can do it, you can do it, but he said we can do it। अब अकेले नहीं जाना चाहते। जैसे लास्ट एक उदाहरण है, कुंभ मेला में हम देखते हैं, एक बार राधिका मोहन प्रभु बता रहे थे उदाहरण। आप जब भक्तों के संग में रहते हैं ना, न चाहते भी आपको खींचा जाएगा। मैं चाहते भी अरे मेरे को पता ही नहीं है। जैसे कुंभ मेला में आप देखोगे, अखाड़ा में एक बार अंदर घुस गए तो पीछे हटने का चांस ही नहीं है। आप सीधा जाके सीधा त्रिवेणी में गिर जाते हैं। अरे मुझे पता नहीं कब होते। यू जस्ट बी इन एसोसिएशन टू दिस। भक्तों के संग में रहो, यू विल बी टेकन बैक टू गॉड। जस्ट बी, भक्तों के संग में रहो। जब खत्म हो रहा है, जस्ट स्टार्ट इन अदब श्रद्धा के साथ भक्तों के संग में आके से सुनते रहो। देन इट बिकम्स स्पॉन्टेनियस। इसलिए प्रॉब्लम होते जस्ट कम। इतना तो प्रयास किया। लास्ट टाइम मैंने उदाहरण दिया था, जैसे कोई भी एटलीस्ट वन सेवा यहाँ पे आके हनुमान जी के उनके चरण स्पर्श करने में उनका कृपा मिला तो तभी इनका भक्ति मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। श्रीनिवास आचार्य बोल रहे ये आज भी मंगलवार का कार्यक्रम है, इनकी कृपा से चल रहा है।
भगवान जी की कृपा से, बजरंग बली की कृपा से, भक्तों का कृपा मिला, then your path is back to what is carrying. हरे कृष्ण।